Let me take a moment to introduce them to you. Kartikeya has written a book on Ramcharitmanas, so he has fair bit of knowledge of what we are discussing today. Kartikeya, tell us a bit about yourself. Actually, the book that I have written is right now is just about the first one part of Ramayana, that is Balkand. This is the first chapter. Ramcharitmanas 7 parts में है. Balkand, Ayodhya Kand. Ayodhya Kand का वो part है जो हम आज discuss करने वाले हैं. Regarding me, from last 7-8 years, I have studied, followed many different kinds of spiritual practices in the world. Started from Bhagavad Gita or 4-5 kinds, then Western philosopher like Eckhart Tolle, Wayne Dyer, Lao Tzu, Buddhism, etc. But ultimately, Ramcharitmanas pe, I got some satisfaction and happiness in life. Ab searching khatam hai, ab this is life, Ramcharitmanas. Thank you. Nice, that's nice. Wonderful. So I'll begin the session right now. Wait, just a minute. I'd like to interrupt here. I just forgot one thing. I would like to show you the book which Kartikeya has written. Sure. Here. Just a minute. Can you see this? It's called Being Ram, Insights into Ramayana. This is the first part of the 4-book series on Ramcharitmanas, and this is a very good beginning for anyone who's seeking initiation into spirituality. So I would recommend everyone to read this once. It was supposed to be released, but because of the lockdown, it will be released after the lockdown gets over. It will be available on Amazon, so you can buy it and read it. It's a wonderful book. Thank you so much. Thank you. That's the book written by Kartikeya, which I was just talking about. Anyway, let's start it. Rashiji and Kartikeya, it is said that everything that happens because fate has ordained it. Bhagwan ne chaha to hoga. Bhagwan ki marzi thi. So carrying forward that line of reasoning, is it correct to state that the gods or the devtas were against the crowning of Shri Ram? Was mantra just a divine tool in the hands of fate to prevent Shri Ram from coming on the throne? राशि भाभी ने पूरी स्टोरी के अकॉर्डिंग पूरी बात एक्सप्लेन कर दी, which is totally correct. अब मेरा इसमें एक और पर्सपेक्टिव है, उसमें 2 पॉइंट्स हैं. पॉइंट नंबर 1 कि देवता भगवान नारायण पे गए थे जब रावण ने स्वर्गलोक पे रावण कैप्चर्ड स्वर्गलोक. तो फॉर हेल्प दे वेंट टू नारायण एंड नारायण प्रॉमिस्ड देम. आकाशवाणी हुई थी कि मैं रावण का अंत करूंगा, संसार में जन्म लूंगा, अवतरित होऊंगा. उसी कड़ी में श्री राम जी का जन्म हुआ और फिर आज ये स्टेज पे पहुंचे. तो इन एनी वेज राम भगवान है, वो अपना काम जानते हैं, उन्होंने कमिटमेंट या प्रॉमिस कर दिया. तो हु आर द देवता टू इंटरफेयर इन द प्लानिंग ऑफ गॉड? यहाँ अगर किसी को कंफ्यूजन है तो मैं क्लियर कर दूं, देवता और विधाता, क्रिएटर, परम ब्रह्म में अंतर होता है. देवता एक पद है जो मनुष्य और ईश्वर के बीच का, आप समझ लीजिए, स्वर्गलोक में रहते हैं. तो इस बात में ये क्लियर होना जरूरी है. और तुलसीदास जी ने भी कहा है कि नेसेसरली देवता आर नॉट टोटली राइटियस. उनके अपने स्वार्थ हैं, उनके लिए स्वार्थ और कचालू जैसे शब्द यूज किए गए हैं, या कैलकुलेटिव. तो वो राम अब उनको ये इम्पेशंस है कि हमें रावण से जल्दी से मुक्ति मिले, क्योंकि स्वर्गलोक पे रावण ने कब्जा किया हुआ है और वो सफोकेटेड फील हो रहे. तो इंद्र जो हैं वो ज्यादा परेशान है, वो चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी हो. तो मदर सरस्वती के पास जाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कुछ करिए कि राम की क्राउनिंग कल रुक जाए, क्योंकि उनको ये डाउट है कि अगर राम जी अयोध्या में ही रह गए तो रावण का अंत कैसे होगा. पर रावण का अंत तो होना ही था, वो श्री राम के हाथ में है. वो देवता को डिसाइड नहीं करना है. वो उसी तरह से आज हमारी लाइफ में हमें डिसाइड नहीं करना होता है कि आगे कल क्या होने वाला. जो हम चाहते हैं ना कंट्रोल कर दें वर्ल्ड को, सिस्टम्स को, तो वो अप्लाई नहीं होता है यहाँ पे. मदर सरस्वती ये बात समझते हुए भी कि देवता आर क्लेवर बीइंग्स और इनसे देखा नहीं जाता दूसरे की का पद बढ़ते हुए, पर वो फिर भी वो जाती हैं अयोध्या और वो टारगेट मंथरा पे करते हैं. मंथरा पे सारी बात अभी बताई जा चुकी है. Kartikeya, your audio please. Audio. हेलो, Your audio is not very clear. अभी ठीक है भैया? हेलो, थोड़ा सा पास कर ले शायद माइक.
हेलो It's clear. Yeah. It's good. Go ahead, please go ahead. Go ahead. Carry on. एक पॉइंट है कि मंथरा अयोध्या से नहीं है, वो केकई के साथ आई थी जब उनके मैरिज के टाइम पे, जब उनके फादर केकई नरेश ने मंथरा को साथ भेजा था कि वो क्लेवर है मंथरा, और वो जो रघुकुल पैलेस में, किंगडम में जो भी प्राइवेट सीक्रेट टॉक्स हो रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन उन्हें देते। तो सरस्वती जी ने देखा कि अयोध्या में जितने अयोध्या वासी हैं वो तो श्री राम भक्त हैं, और जो भक्त होता है उसकी बुद्धि नहीं फेरी जा सकती, सिर्फ एक वल्नरेबल बीइंग है और वो है मंथरा। थैंक यू। प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन मोहित भाई। So whether it was Ram or whether it was Bharat who became the king, मंथरा का जो स्टेटस है वो तो दासी ही रहता। तो अभी जैसे तुमने कहा, why did she conspire against the Raghukul family? Kartikeya? So first part of the question. Kartikeya, again, voice is audible. You'll have to. Hello. हाँ जी। हाँ। जो आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है कि श्री राम ने प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया, तो यहाँ पे एक पर्सपेक्टिव मैं और देना चाहता हूँ, वो ये कि श्री राम ने जो ये फॉरेस्ट एग्जाइल का आदेश था केकई माता और दशरथ जी की तरफ से, उसको भी माता पिता का एक आदेश समझा जो उनके भलाई के लिए था। श्री राम का ये विश्वास था कि माँ क्या तभी तक माँ है जब तक वो हमें सब हमारी कंडीशंस के अकॉर्डिंगली हमें सुख देते रहे, या हमारे आराम से हमारा कंफर्ट कन्वीनियंस देखे। अगर माँ अपने बच्चों को स्नेह करती हैं, कुछ गिफ्ट देती हैं, कुछ मिठाई देती हैं, तो ये माँ का अधिकार है कि जब बच्चे में कोई बुराई हो तो उसे दूर, या कोई बीमारी हो तो उसे दूर करने के लिए कड़वी दवाई भी दे। तो केकई माँ का ये आदेश श्री राम उस दंड का भाग समझते हैं जो उनकी भलाई के लिए केकई माँ ने दिया है। ये एक पर्सपेक्टिव है श्री राम जी। He felt that for his own good, Mother Kekai is disciplining him through forest exile. Otherwise, Ram knew that no person can spoil the ananda or true bliss that forever remains inside every being. He always knew and believed the Sat Chit Anand attributes of Atma. अब जो सेकंड पार्ट है कि अदर देन मेकिंग her son Bharat the king, what was Kekai's reason for exiling Ram? तो यहाँ एक पर्सपेक्टिव ये है कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट केकई के लिए ना भरत इम्पोर्टेंट है ना राम इम्पोर्टेंट है। जैसा मैम ने बता दिया कि केकई के लिए आई फैक्टर, दैट इज आई, मी एंड माई सेल्फ, वो इम्पोर्टेंट है। एंड द ईगो कैन स्टूप टू एनी लेवल, सेल्फ वेस्टेड इंटरेस्ट। सिर्फ इस एक अपने उनकी जो एट्रीब्यूट है रजोगुण कि मेरा नाम हो जाए, नाम कैसे हो कि अयोध्या का जो राजा बने, सारा जगत ये जाने कि केकई उनकी माता है, ये बात। और जब अभी तक तो उन्हें लग रहा था कि राम राजा बनेंगे और मैं उनकी माता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि राम उन्होंने कहा है, चौपाई में आता है कि श्री राम, उन्होंने कई बार टेस्ट किया है और हमेशा उन्होंने देखा है कि राम ने केकई से दूसरी माताओं के in comparison to others ज्यादा स्नेह किया। So she was very pretty confident about it. तो उस एक वीक रात में, उस एक क्षण में मंथरा ने उनकी बुद्धि फेर दी केकई की और वो इनसिक्योर हो गई। और तब उन्हें लगा कि ये राम अगर राजा बनेंगे तो इसका जो मदर का जो पद है वो तो कौशल्या को मिलेगा, और इस वजह से जो केकई चाहती थी इतने सालों से वो उन्हें हासिल नहीं होगा। तो लास्ट मोमेंट पे केकई ने ये डिसाइड किया कि भरत को ही मुझे किंग बनाना चाहिए हर हालत में। In the history of Ayodhya, she wanted to be mentioned as the mother of King Ram, but she also knew that practically it was not possible in this lifetime. Ultimately, she wanted to be known as the mother of Ayodhya's king. When she saw that this possibility is not certain with Ram becoming the king, she tricked to make Bharat the king. Thank you. Mohit bhai. One last question before I throw this session open to questions from the audience. Is there a reason Dashrath favored Kekai over Queens Kaushalya and Sumitra?
would you put the blame of Sri Ram's exile on Dashrath? अभी सबसे पहला देखिए माइक थोड़ा पास लाइए. The first takeaway अभी तक मैम की जो आंसर है उससे मुझे मिला कि never give a promise when you're very happy. एक बार दशरथ प्रसन्न हुए जब केकई से मिले तब गलत प्रॉमिस कर दिया कि आपका पुत्र ही राजा बनेगा. और दूसरी बात I'll have to interrupt. थोड़ा जोर बोलिए. Can you bring the mic a little closer? Hello? Yes. Okay. Now is it okay? Yes. So the first time Dashrath was very happy when he met Kekai, and the second time जब केकई ने उनके प्राणों की रक्षा करी तब उन्होंने उन्हें वरदान दे दिया. और ये दो इंसिडेंट ही उनके लिए उनके फेवर में नहीं गए. अब why did Dashrath favor Kekai over the other queens? Dashrath was always very much mesmerized with Kekai's grand qualities. She was his companion in wars. Kaushalya and Sumitra were also highly knowledgeable and saintly souls, but they were not vibrant like Kekai. And it was only Kekai, not the other queens, with whom Dashrath could relish the games of romance and physical intimacy. अब ये second part में question में आता हूँ कि what extent is Dashrath responsible for Ram's exile? तो एक पर्सपेक्टिव ये है कि जब क्राउनिंग सेरेमनी नेक्स्ट डे होने वाली है और उनके जो राज्य पुरोहित हैं वशिष्ठ जी जो उनके गुरु भी हैं, उन्होंने ये आज्ञा दी कि आज रघुकुल परिवार व्रत रखेगा रात्रि में और कल सुबह जैसे कि यज्ञ होने वाला. तो दशरथ ने उस आज्ञा का उल्लंघन किया और वो केकई से मिलने गए उस रात. अगर दशरथ उस रात अपने किसी से ना मिलते, उस व्रत का पालन करते, तो केकई से वो ना मिलते, ये जो सारी कॉन्स्पिरेसी है ये एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाती. Little louder. हेलो. Yes. ये कॉन्स्पिरेसी एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाती नेक्स्ट डे मॉर्निंग पे और फिर शायद स्टोरी रामायण की कुछ और होती. तो दशरथ की जो मिस्टेक है यहाँ पर ये है कि उन्होंने उस व्रत का पालन नहीं किया. इसके साथ एक पॉइंट और मैं देना चाहता हूँ कि यहाँ एक थोड़ी सी गलती मुझे कौशल्या जी की नजर आई. तो रामचरितमानस में Voice is not clear. Voice is not clear. बिल्कुल आवाज नहीं आता. हेलो. I don't know. Probably the net Oh, it's connection. just If somebody has their phone also near system. Kartike, are you online? I think he is. Hello. Anji, Arya, this is much better. Okay. Probably internet connection, some problem with the connection. Mic is fine. तो कौशल्या जी के बारे में बता रहा था कि अगर दशरथ जी सिंबलाइज करते हैं धर्म, तो कौशल्या जी इस ज्ञान, सुमित्रा जी इस भाव, केकई जी इस सकाम भाव. तो कौशल्या जी की जीवन बड़ा ही पवित्र और ज्ञान मार्ग में रहा है. बस उनकी यहाँ पर एक छोटी सी गलती ये हो गई कि जैसी उन्होंने ये न्यूज मिली कि राम राजा बनेंगे, शी गॉट वेरी एक्साइटेड एंड ओवरवेल्म्ड. ठीक है, ऑफ कोर्स वो एक मदर है, पर उन्हें केकई का नेचर शुरू से पता था. वो जानती थी कि केकई इज ईगोइस्टिक एंड उनमें रजोगुण है, सकाम भाव है. तो कौशल्या जी को थोड़ा इंक्लूसिवनेस, थोड़ा केकई जी को पार्टिसिपेंट बनाना चाहिए था अपने सेलिब्रेशन में. तो केकई जी के अंदर ये फीलिंग नहीं आती कि कौशल्या मेरे अगेंस्ट हो सकती है, और मंथरा कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाती केकई जी का माइंड पॉल्यूट करने में. थैंक यू. I would like to ask, ultimately, are Kekai and Manthra actually negative individuals? So, the question is कि ultimately केकई और मंथरा are they negative? तो पहले तो मैं थोड़ा केकई जी के रेफरेंस में बात करना चाहता हूँ एक मदर के पर्सपेक्टिव से, कि केकई जी ने हमेशा पहले राम को प्रेफरेंस दी एज कम्पेयर टू भरत थ्रू आउट द लाइफ, और उस पॉइंट तक भी
वो इस वजह से ये होता है अक्सर पेरेंट्स के साथ कि वो किसी अपने बच्चे यार कार्तिक, you'll have to bring the mic closer. ध्यान देते हैं दूसरे पे कम, ऐसा Karthik, mic closer please. it's quite close. Hello. हाँ जी. Now also it's not clear. Hello. Yes, carry on please. हाँ, carry on. तो ये जो पेरेंट्स के साथ होता है, फेवरेट चाइल्ड कोई एक स्पेशल होता है, तो यहाँ पे ये रीजन ये था कि राम को तो पूरी संसार जान चुका था, उन्होंने सिंगल हैंडेडली इतने सारे असुरों का नाश किया, और शिव जी का धनुष सीता जी के स्वयंवर में उन्होंने अकेले उठा दिया, तो उन्हें तो सब जानता था। अब तक भरत जी की जो क्वालिटीज थी, भरत जी में क्वालिटी की कोई कमी नहीं थी, पर वो अभी संसार के सामने नहीं आई। तो तब तक तो कैकेयी जी को ये था कि राम माय फेवरेट सन, जब इनसिक्योर हुई तो भरत जी राजा बन जाएं, पर वो ये जानती थी कि डिजर्व राम जी करते हैं, बट अपने वजह से उन्होंने भरत को राजा बनाया। अब मंत्रा का रोल तो इतना है कि कैकेयी जी की में जो एम्बिशंस हैं, उसकी जो अग्नि है, उसमें वो तो जल ही रही थी, वो चिंगारी का काम किया था, उसका तो कोई ज्यादा रोल है नहीं। अब अल्टीमेटली हमारा ये विश्वास है, जैसा श्री राम जी का भी है, कि कोई किसी के दुख का कारण नहीं हो सकता, हर एक का दुख का कारण उसका प्रारब्ध है, काल है, ईश्वर है। तो हम भी नहीं मानते कि मंत्रा है कैकेयी जो हम दोष दे, और एक मदर को तो हम किसी तरह से भी नहीं एक्सेप्ट कर सकते। Can the wrongful deeds be justified based? हिंदुस्तान में कम से कम ये 1500 रामायणों के वर्जन होंगे, और उन रामायणों के अंदर एक बात का जिक्र आता है कई जगह पे। राम जी ने खुद कैकेयी से बोला था कि आप हमको वनवास दीजिए, कि अगर हम वनवास नहीं जाएंगे रावण को भी नहीं मार पाएंगे, ना पॉलिटिकली हम इतने स्ट्रॉन्ग हो पाएंगे कि हम इस राज्य को राम राज्य या एकजुट कर पाए पूरे भारतवर्ष को। तो इस बारे में राशि जी का और कार्तिक का विचार जानना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि ग्रंथ के कथाओं के तरीके से है जो सब बोली गई, 1700 साल तक रामायण बोली गई। ठीक कहा, रामायण के बहुत सारे वर्जन हैं, और रामानंद सागर का भी अगर आप रामायण देखेंगे कि कन्नड़ रामायण है, महाराष्ट्र की रामायण है, ईस्ट इंडिया की है, वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास जी की रामायण। अब वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास रामायण में तो कहीं भी है, आई हैव रेड इट, ये बात हो चुकी है बचपन में कि श्री राम जी आए थे कि आके उनकी आंखों के आगे हाथ बता दिए, आप पहचानो कौन है, हम पहचान पा रहे कौन है बताइए। तो उन्होंने कहा एक शब्द पे हाथ बताएंगे, आप हमें वचन दीजिए। बोले वचन क्या है? कि बोले जब हम सर्टेन पहुंचेंगे तब आप हमें उसका आदेश देंगे। तो यू आर राइट, ऐसा हुआ था। इसमें आप कुछ और एडिशनली कुछ पूछना चाहते हैं? Anmol ji, has your I think we've answered your question. I have actually somebody said that Mantra behaved as she did because of her ego and she wanted importance. But what I from her father's place with her, therefore her loyalties lay with Kaikeyi. And in any case, she would support Kaikeyi and Bharat because they were her own. And I think that it was not because of her ego or something, or that she wanted something important. I want clarification on that. One thing I want to say about it. Kartikeya, I think what she's asking is, it's not ego but just the loyalties. Is that right, ma'am? Is that what you want to ask? Yes. So loyalties versus ego. Kartikeya, how do you respond? Hello, can you hear me? Kartikeya, can you hear me? Mohit, can you hear me? I'm hearing you. Hello. Yes, Kartikeya. Loyalty versus ego in what perspective? I didn't hear the question. One of the answers was that ego is what made Mantra do what she did.
Preeti ji is saying that perhaps it was loyalties and not ego that made her do what she did. Is ओके, तो आप ये बताइए कि क्या लॉयल्टी भी ईगो का पार्ट नहीं है? आप किसी एक को अपना फेवरेट मानते हैं तभी तो उसके प्रति आप लॉयल हैं, तो वो भी तो ईगो है। और ईगो मतलब किसी से आइडेंटिफाई होना जिससे कि आपको कोई बेनिफिट मिले, तो इन अ वे क्या लॉयल्टी भी ईगो नहीं है? प्लीज। So loyalty is basically selfishness, which is again which leads to ego. नहीं, Is that? I'm not saying it's selfish. It's a part of ego. नहीं, selfishness is स्वार्थ, और स्वार्थ और अहंकार में अंतर है। स्वार्थ जो है वो अहंकार के अम्ब्रेला के अंडर आता है, लेकिन अहंकार के कुछ अच्छे पार्ट भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से ईगो गलत है। पर यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ये जो वफादारी है, लॉयल्टी इज वफादारी। वफादारी भी तो एक तरीके से ईगो का पार्ट है, और यही वफादारी अस वर्सेस देम की फिलॉसफी को नहीं प्रमोट करता कि अगर मैं आपके प्रति लॉयल हूं तो चाहे आप गलत भी सोच रहे हैं तो भी मैं उसको डिफेंड करता रहूं। जो आज हम बात नहीं देख रहे हैं संसार में हो रहा है ये रिलीजन के नाम पे, तो मैं बस एक पर्सपेक्टिव में बात कर रहा था। तो ये तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि आप अगर किसी के लिए लॉयल हैं तो गलत काम को आप प्रमोट करें। ये तो रामायण का वो नहीं है। सॉरी, थैंक यू। So, Divya ma'am, you are next. I've unmuted you. Divya ma'am, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है मैम, आपकी जबरदस्त आवाज आ रही है। Of course. अच्छा ठीक है। मेरे दो ट्विन क्वेश्चंस इंटरमिंगल्ड है। सबसे पहले रामायण थी वाल्मीकि जी ने लिखी थी, ठीक है। जो हम रामचरितमानस पढ़ते हैं तुलसीदास जी की, वो भगवान के रूप में राम को दिखाया गया है। बनस्पत की वाल्मीकि जी की रामायण में उनको एक इंसान जो है उसको भगवान का स्टेटस नहीं दिया गया वाल्मीकि के रामायण में। दूसरी बात, मंथरा और केकई जो थे वो कैटलिस्ट थे, दे वर जस्ट कैटलिस्ट। उन्होंने अपने ऊपर खुद स्वयं लिया था, ये उन्होंने अपने ऊपर एक श्राप लिया था सो दैट राम कुड मूव फॉरवर्ड। हमारे को तो ये समझ में आता है कि सबसे ज्यादा सफर किया ही केकई ने। Okay, I get your point. The second part of your question, I think we answered it in the first question that I asked. So what the gods or the fate that had ordained, मतलब भगवान की मर्जी थी ये होना है, जो कार्तिकी ने शायद बताया था कि नारायण। मैम आपकी आवाज अब थोड़ी सी कम हो गई। कह रही है मैम सही कह रही हैं कि केकई ने फिर पूरी लाइफ रिपेंट भी तो किया, तपस्या करी अपने, तो केकई तो नेगेटिव हो ही नहीं सकती। लेकिन अब आप इससे और फिर और पीछे आ जाइए कि केकई के कुछ पूर्व जन्म के कर्म रहे होंगे, जैसे हम लॉ ऑफ कर्मा जैसे कहते हैं, तो उस वजह से उन्हें इतना सर्टेन पार्ट ऑफ बुराई इस लाइफ में डील करना ही था, तो वो बैलेंस करा रहे थे राम इस रोल को उनसे करवा के, और फिर उसके बाद केकई जी की मुक्ति हो गई अंत में। इसको इस तरह से ले लीजिए, फिर इस पर्सपेक्टिव से ले लीजिए। दूसरी बात ये है कि मेरा क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ। वाल्मीकि जी की रामायण और रामचरितमानस, which is better? Ramcharitammanas is from the point of view of idealizing Ram. Valmiki ji is the original Ramayana. वाल्मीकि रामायण इज लाइक हिस्ट्री, और Yeah, ये तो which is better तो ये हो गया कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी और एफिल टावर में which is better, तो ये इसका तो मैं आंसर यही समझता हूँ। और रामचरितमानस इज प्योरली भक्ति शास्त्र। उन्होंने अच्छा, वाल्मीकि रामायण जो है वो संस्कृत में लिखी गई थी, जो कि आम जन की भाषा नहीं थी, तो वो तो समझ नहीं पाते थे। ये तो जो पंडित थे वो पढ़ते थे संस्कृत और वो उसे ट्रांसलेट करके उन्हें बताते थे। तो जो जन साधारण है वो तो हमेशा उन कथावाचकों पर डिपेंडेंट हो गया, लेकिन तुलसीदास ने उसे सामान्य जनता के सामने ले आए उनकी भाषा में, जो उनका लोकल डायलेक्ट था, दैट वाज अवध। तो क्या ये एक अच्छी बात नहीं है? आज हिंदी में ही हमें कोई शास्त्र मिल जाए, बजाय इसके कि संस्कृत के श्लोक पहले हम उन्हें समझें और फिर पहले संस्कृत समझें फिर उनका व्याख्या समझें। तो ये डिफरेंस है, पर दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है। Just the God as the divine. तो as the ultimate divine, but he has not been given the padvi of like the not given. मैम वो तो डिटेल्स हो गई, सेमांटिक्स हो गया, बट जनरली स्पीकिंग दोनों में मतलब भगवान ही है। ये पूरा
ओनस केकई ने अपने सिर पे लिया था। केकई वाज द सफरर इन द होल डील। केकई ने बोला मैं पूरी बनूंगी क्योंकि मैं सबसे ज्यादा भगवान से मैं प्यार करती हूँ, तो मैं तो ही उनकी चॉइस थी ना केकई जी की, उन्होंने एक्सेप्ट किया ना राम जी के रिक्वेस्ट। ये किसमें, ये दिस इज इन रामचरितमानस और इज दिस इन वाल्मीकि रामायण, दिस पार्ट? कार्तिकेय, ये मैम ये फोकलोर्स की कोई ये फोकलोर्स हैं, लोक कथाएं, इनका कोई अंत नहीं है। अगर हम एक कोई पकड़ के चलें तो शास्त्र पढ़ने का पर्पस अपने लिए है कि हम अपने आप को इम्प्रूव करें, बजाय किसी कैरेक्टर को जस्टिफाई करने से क्या हमें मिलेगा। हम तो अपने आप तो देख लें कि कोई केकई एलिमेंट हमारे में ना हो। थैंक यू। So why this exile? Why this question has always, has like always bugged me. Why the exile? Anyway, if even one rishi had come and asked Dashrath, I want Ram and Lakshman to be out in the forest for 14 years to help to kill all the demons and to bring back dharma in this world, then I don't think Dashrath would have dared to say no. So this kind of torture inflicted upon Dashrath, and for maybe you can say that wo Shravan Kumar wali kahani, that I think that what Neelama, what you're saying is that this is a very roundabout way of doing what he did, correct? He could have directly gone directly. The one rishi could have come and said, "Ki please send Ram. We need him. We need him to slay the demons. We need him to remove all the bad that is there in the world. We need him for this and मैम स्टोरी में थोड़ा ड्रामा चाहिए ना, तभी थोड़ा इंटरेस्टिंग ड्रामा चाहिए। Runu ma'am, then I'll हो come जाएगा to तो मजा नहीं आएगा ना। cover the whole of India. Runu Cover the ma'am, whole of India. you're next, then I'll come. हाँ, मैं मदर्स डे पे राम जी का मैसेज एक देना चाहता हूँ। वो ये है इस सीक्वेंस से रिलेटेड कि पूत कपूत हो सकता है पर माता को माता नहीं हो सकती। हैप्पी मदर्स डे। चलिए।